So welcome you all to the training session on ISO 9001 2015 Quality Management System Internal Auditor, and today is the 13th session. And in today's session, after the clause of confidentiality, we will go through the turtle diagrams of maintenance section and control of non-conforming material procedure, means that particular turtle diagram for that thing. Yesterday we have completed turtle diagram for calibration. Then I have shared two scenarios yesterday to you people, that NC scenario and reporting exercise. So you people have to find out whether there is a existence of a non-conformance or not from that given scenario. And I have added another scenario also, NC scenario number 3, that also we will discuss. Then we will go through the quality procedure for internal auditing. I will share with you how a quality procedure for that particular internal auditing activities is done. So we will discuss that various activities in the internal auditing and how we can frame a quality procedure for that. And then I will share with you the NC reporting format. Whenever you find out certain non-conformances during the internal audit, you can utilize that particular format. But it is up to organization. Every organization can have their own type of format. So clause of confidentiality, as we are telling you at the start of every session, the training content is of proprietary nature. Do not share the screenshots, recordings on any of the public platform, nor to your connections without the prior consent from us. Share the knowledge, do not share the contents directly. We are discussing the auditing, and in that turtle diagram, yesterday we have seen the turtle diagram for calibration process, in which we have discussed the inputs, what are the outputs, what the support processes are, who is going to carry out this, what resources are required, and based on that, when you gather all this information, what are the various risks involved, and when you gather all these things, what will happen? You can start checking the compliance or requirement of ISO 9001 and check the available documentation, available systems followed by the organization. And then if it is not matching with the requirement or criteria, it means there is a non-conformance. The gap needs to be filled by conforming to the requirements. अब turtle diagram जो होती है, you can use for the auditing, you can use while planning your quality management system, planning the organization's quality management system also. Planning, implementing, for that purpose also you can utilize the turtle diagram. Now let us go through the turtle diagram of maintenance process. So for a maintenance process, it is basically the input. What is the input? For maintenance process, you require breakdown information and production plan. These are the input information you require or input to the maintenance process. Apart from that, as per the organization's structure, you can add few more things also. That depends on organization to organization. Now, what is the output of the organization, this maintenance process? The maintenance process output is preventive maintenance plan. The information which is given to the production. Improved life of the machine is the output of the maintenance process. Better upkeeping of the machine. Improved productivity. So, if maintenance process works properly, this is the output you are going to get from the maintenance process. And when the maintenance process will act based on the breakdown information, based on the production plan, they will manage their activities. Now, what are the various resources required with what they are going to do? The resources required are: 1. Maintenance tools and equipment, it is required. Anything else is required for the maintenance process? Human resource, don't take human resource we are considering here.
So what else you will require for the maintenance process? What resources are required? Anything comes to your mind? Like if you are using certain software, that can be a resource. Software for managing the maintenance process or software for managing the breakdown and all these things. So that becomes a software system is the one of the resource that you require for this process. Then how you are going to carry out this maintenance process, how this process is controlled. So there must be certain maintenance workflow, procedures, standard operating procedures, SOP, checklist will be there, based on which the preventive maintenance, breakdown maintenance or machine health checkup will be done. So this is how you control the maintenance process so that it works properly, it works as required. And when we have the documentation related to that one, it means people will follow that. It is a system dependent, not the person dependent. Sometimes the person may change, but this documentation will be there in the organization. So the new person can go through the documentation, how it is being done. And again, they will follow the same system. So your maintenance process will not deteriorate because you have certain things in place to control this process. Now, any support or outsource processes are there? So, okay, any contractual agreement if your organization has, you can write that. If you are taking people on contract or you have made a contract with certain people for carrying out the maintenance process, it will be written here. Now, when you write here, you will have certain clauses. What clause will be applicable here then? What clause you will verify? The requirements of which clauses you will verify when you are checking support or outsource processes? I have shared the clause structure with you people. You can first tell me the main clause, whether it is 3, 4, 5, 6, 7, 8. What will be the main clause related to the support process? Will it be 8, the operation, and then control on external providers? So it can be a product, it can be a service or outsource process. So that comes under clause number 8.4. Okay. 8.3 design and development, 8.4 is the control of external related to the external provider. So you will check the requirement related to this when you come to know that yes, they have done the contractual agreement for maintenance. So you will ask them how you have selected them, what controls you have on them, because outsource activity needs to be controlled. It should be in control of the organization. Okay, so based on the turtle diagram, what you are going to do, you are going to check the compliances, whether organization is complying with the requirement maybe of the standard, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उसके साथ, या फिर जो रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने कुछ राइट डाउन की होगी इन केस ऑफ प्रोसीजर्स एसओपीज, वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द ऑडिट. Then what are the various risks associated with the maintenance process? What can go wrong? क्या ऐसा हो सकता है? What are the various risks associated with the maintenance process? So ये हो सकता है कि there is the machine is not available for the maintenance. Production के लोग आपको मशीन नहीं देंगे. It may happen. Okay, so the production machine may not be available because of the production pressure. Machine breakdown हो सकता है suddenly, that can be a problem. Required spares not available. Whatever the required spares are there, not available. Another risk, if you have taken this contractual people or you have contracted some
organization for carrying out the maintenance, contracted some party, then the risk will be the organization or the party that you contracted is not competent enough, or their quality of work is not good. So that is one of the risk. So ultimately you need to find out how you are going to address this risk. किस तरह से आप इस रिस्क को एड्रेस कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास अलग रहेगा, है ना. तो दैट यू नीड टू आस्क एज ए इंटरनल ऑडिटर. आप उनको पूछोगे, प्लीज शो मी दैट डॉक्यूमेंट वेयर यू हैव एड्रेस दिस रिस्क. ये तो हो गया कि रिस्क क्या क्या होती है, आप उनको पूछ सकते हो, है ना. आप उनको पूछ सकते हो. अनदर रिस्क, आप उनको पूछ सकते हो क्या क्या रिस्क है. फिर आप उनको नेक्स्ट पूछ सकते हो कि यस वेयर यू हैव रिटन दिस रिस्क. ओके, नाउ हाउ or with whom or who you carry out this process. So what is the competence, skills, who are the process owners? So here you will require skilled, qualified fitter, welder, lathe machine operator if lathe machine is there. If hydraulics is mainly used there, so hydraulics engineer, utility engineer who knows about the compressor, boiler, etc. if these things are being used there, certified electrician if that is a requirement. Okay, so all the requirement that you can write here, you have to ask them, because you will come to know how the process is being carried out. You will ask them how you are carrying out the maintenance process. When you understand the maintenance process as an auditor, you will come to know that yes, there needs to be a lathe machine operator, there needs a certified electrician, there is a compressor used, boiler being used in the organization. So you need competent people who can handle the maintenance of this process, who knows about the operation of this process. Got it? So then you will start checking their documentation, or the people, you can interview the people whether they are competent enough or not, and you can check the requirement of 7.2 competence. Okay, you can check the requirement of 7.2 competence. Now what are the key result areas, quality objectives? So that is breakdown time, MTBF, MTTR, spares cost. So I have written all these things. Every organization can have their own quality objectives, KRS for the maintenance process. So you will ask them how you are going to check the output or the performance of this maintenance process. What are the KRS? What are the KPIs? What are the quality objectives? How you monitor them? How you communicate them? What actions you have taken on non-achievement of the quality objectives? ये हमने कल all discuss किया था calibration की Tatar diagram में. So you will ask them as a internal auditor, and then relevant clause जो है आपका, या जो procedures है उसका reference देके आप information gather करोगे इसकी. Now you can fit all these thing into the PDCA. You are planning the process. You are planning the process by way of getting information, by way of some certain documentation. Then you are actually carrying out the process. You are carrying out the process, this maintenance process, utilizing the various resources, utilizing the people, the competence and all these people. So you are actually carrying out. So that will be do. You are doing this. This risk, all these things is a planning part. This is a planning part. The documentation you do is a planning part, but you utilize it in the do part also. Then you are checking whether the maintenance process is being or performing as required or not. So that is a C, checking. And based on that, what are the gaps are there, you are acting, act, PDCA, plan, do, check, act. So it means this turtle diagram is also plan, do, check, act. Ultimate, it is a process approach thing.
है ना. तो PDCA is also a process approach. You are basically planning a process, you are carrying out a process, you are checking the process whether it is performing as required or not, and then taking the action. आप actions लोगे जो भी gaps है उसके ऊपर, और जब gaps पता चलेगी, again you will start improving. If you do not know the gaps, how you are going to improve? The first thing towards improvement is to know where we are lacking. If we don't know where we are lacking, how we can improve, what actions we will take? If we are not accepting, or we are not knowing that there is a gap between the skill set required and the skills possessed by us, how we can improve our skills? Similar way, if we do not know the gap between what the process should do and what the process is actually doing, if we do not know this gap, how we are going to bridge the gap, how we are going to achieve the targets? And that is why we need to check the performance and then act accordingly. So this PDCA will keep on continuing. So try to carry out the audit utilizing the checklist what we prepared for clause number 5, clause number 6 yesterday. Try to utilize that, as well as try to utilize the turtle diagram also. Do certain mock audits. मे बी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने में एक बार हो रहा होगा ऑडिट, नो प्रॉब्लम. फॉर इंप्रूविंग योर ओन कॉम्पिटेंसी एज ए इंटरनल ऑडिटर, आप लोग बीच में जाके भी मॉक ऑडिट कर सकते हो. इवन आप खुद के ऑर्गेनाइजेशन का चेक कर लो, बाय आप खुद के सेक्शन का चेक कर लो. जस्ट स्पेयर 1 आवर 1.5 आवर चेक कि हम टर्टल डायग्राम में ये सब चीजें डालते तो कैसे दिखता है ना. कहाँ पे गैप्स है, क्या हमारे KRH डिफाइंड है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, है ना, हमारे लोगों की कॉम्पिटेंस प्रॉपरली है या नहीं है, जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. सो दैट यू कैन डू ऑल्सो. डू नॉट वेट फॉर द इंटरनल ऑडिटिंग शेड्यूल टू कम. You can improve your competence by doing auditing through the check sheet, auditing using the turtle diagram, or even PDCA cycle also. So this was turtle diagram for the maintenance process. If any questions, you can ask. Now this is one clause, that is control of non-conforming output. So it is basically one of the process. Control of non-conforming output you can consider as a process. Now to check the conformance of this thing, you can utilize the turtle diagram. Okay, I have put it here because once we discuss this turtle diagram, we will come back here and check, okay, what we are going to, what compliances we are going to check. Got it? So this is the turtle diagram for the non-conforming material. Again, in the earlier turtle diagrams, I have not shown the process owners. Okay, but turtle diagram में आपको process owners भी दिखाने हैं. So what is the name of the process? Control of non-conforming product. Spelling mistake is there, don't worry. Process owner, Mr. So and so, Mrs. So and so, and designation. So in the center you need to write that. Okay, who is the process owner? Then what is the input? What will be the input for control of non-conforming material? सबसे पहले तो आएगा जो भी हमारे internal non-conforming material बनते हैं वो, that will be one of the input. Your customer feedback या complaints जो आते हैं आपके पास, that will be one of the input, because based on that you are going to act. ये नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल रहता है, उसको आप कंट्रोल करते हो. एंड देयर फील्ड रिटर्न्स, कभी अगर फील्ड से कुछ मटेरियल रिटर्न आता है, बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू कंट्रोल, you are going to follow this process, control of non-conforming material or output, basically not material, it is called output, control of non-conforming output. This is the input, it is important. And what will be the output? The output of the control of non-conforming process will be your non-conforming material record, your non-conforming tag, rework register, deviation report, inspection record. Now again,
I told you, organization to organization, it may change slightly. Certain things will add up, certain things will be removed, but you need to comply with the requirement of the 8.7. Okay, this 8.7 we will come back. Now, how you are going to, what are the various resources required? If you want to judge a non-conforming material, you want to control, what resources will be required to perform this process basically. So you will require gauges and instrument, equipments, and a certain test equipments you will require. You will require computer or software in case you are utilizing that in your organization to log in the data, to log the data of non-conforming material. तो आपके पास वो लगेगा. And you require tags if you are identifying the non-conforming material utilizing certain types of tag like NC material, hold, reject, certain whatever it may be, that you need to utilize the tags. So these are the various resources required. Now, how you are going to control this process? Again, controlling means it should be performed in the similar way. It should not be a man dependent कि आज कोई है तो उस हिसाब से carry out करेगा. If that person leaves, the new person doesn't know, or he doesn't carry out the process as before. He will carry out in a different way, which may be not giving the same results. So for that, what you should have? You should have certain SOPs, work instructions, control of non-conforming output की quality procedure, your CAPA records. Now, utilizing this, you are basically controlling this process. Now, when I write this, when you are doing the audit actually, you need to write work instruction. What work instruction they have? You need to write the number, identification number, and that name also. If they are following certain procedures, you need to write the name of that quality procedure, number of that quality procedure. Okay, you cannot just keep, when you are writing, I am writing here gauges and instrument, you need to specifically write whether you are utilizing the vernier, whether you are utilizing the micrometer, pH meter, TDS meter, what all you are using, you need to write here. Or you can give the reference of list of instruments also, list of measuring equipments अगर आपके पास बनी है, you can refer that also here. फिर आप क्या करोगे एज ऑडिटर? आप उनको बताओगे प्लीज शो मी दैट. इन दैट यू विल फाइंड आउट वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट. Got it? Now, what is the risk associated with this particular procedure or that particular process? Control of non-conforming output. Okay, what is the risk associated? What the risk will be? The activity which you are planning is not properly performed. So if the non-conforming material is not properly identified, is one of the risk. The tag what you are putting there is removed, it gets removed. ऐसा हो सकता है कि you are putting, you are identifying the material, but because of the way the tag is fixed, because of how it is labeled, because of the material you have selected for the tag, it may get removed, it may get torn. So that is a risk. And if the materials tag gets removed, nobody can identify actually whether it is a conforming or non-conforming, and there is a chance that it get mixed with the okay material. So all these risks are there. You will have definitely a plan to address it. क्योंकि जब हमने रिस्क को ये किया है, आइडेंटिफाई किया है, it is not the purpose is not to identify the risk. Purpose क्या है? To take the action to avoid such risk. How you can eliminate this risk? How you can lower down the impact of that particular risk? What alternate arrangements we can have to mitigate that risk? Okay, that's why we are identifying the risk. So you need to find out. Identify the various risks.
then there is a risk of NC material being dispatched to the customer. It is a risk. NC material being dispatched to the customer, it is one of the risks. Then there can be another kinds of risk also, 5, 6, 7, 8, whatever you want to write, means related to that one you can make. Then with whom you are going to perform this, what is the competence, skills, process owner. So I have written QC inspector, you can write QC supervisor, tester, whoever is involved in this particular process controlling. If production operator is involved, you can write the production operator also. So all these people should be first thing aware of this particular process. They should be aware of all this controlling, how you are doing the procedure, the work instructions, they should be aware of. और ये चीज आपको चेक करनी है इन दी इंटरनल ऑडिट कि जो लोग इससे कंसर्न है क्या दे आर अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. क्योंकि जब अगर लोग अवेयरनेस ही नहीं है, पीपल डोंट नो हाउ टू कैरी आउट दिस थिंग, हाउ टू कैरी आउट दिस प्रोसेस, इसका मतलब वो तो कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से. सो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो भी उनकी अवेयरनेस है आपको चेक करनी है, उनका कॉम्पिटेंस चेक करना है, उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करने हैं आपको, एंड देन सपोर्टिंग. सो नॉर्मली नॉन कन्फर्मिंग में तो कोई आप आउटसोर्स नहीं करोगे, सो इट बिकम्स नॉट अप्लीकेबल. ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई आप बाहर के लोगों को नहीं बताओगे कि कंट्रोल द नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट. इट इज बीइंग डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. You are not requiring any outside support for this. Okay, so if nothing is there, you can keep it blank, put a dash. Not applicable, you can write NA. Now what results you are going to measure, how you are going to monitor कि ये जो हमारी प्रोसीजर है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट, ये प्रॉपरली कैरी आउट की जा रही है. ये कैसे हम करेंगे, आप कैसे चेक करोगे इसकी इफेक्टिवनेस, क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स लोगे आप. So आपको पूछना है what quality objectives have you taken? Have you taken NC percentage? That is non-conforming percentage. How much percentage of non-conforming product is being produced at your organization? Like even educational organization है, उसके लिए भी हो सकता है. एजुकेशनल के लिए नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट क्या हो गया कि जो डिस्क्रिपेंसी होती है, जो आप सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हो, जो मार्क लिस्ट हम दे रहे हो, उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाए, है ना. अल्टीमेटली नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट जो प्रोडक्ट होता है हमारा, है ना, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इट इज नॉन कन्फर्मिंग, इट इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, बेसिकली योर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड. अब उसमें अगर आपने कोई डिस्क्रिपेंसीज आ गई, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट वन, है ना. अगर कोई पर्टिकुलर बैच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट वन. तो वो आपको, तो आप मॉनिटर करते हो कि हमारे यहाँ पे परसेंटेज कितना है नॉन कन्फर्मेंस का. दैट इज वन. इफ यू आर कंट्रोलिंग, इफ योर प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, इट इज नॉट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट. ओके, it is control. Control means you have to bring it down. There should not be any non-conformance. So just identifying is not the end. You need to take certain actions also based on that particular non-conformance. You need to find out the root causes, probable causes. You need to find out the root causes. You need to take the action. Okay, you need to take the action on that. Now this NC% first time through pass means whether it is basically opposite of this one. If your internal NCs are 5%, it means your material is not directly passed, it is 95%. So some people follow this FTTP or some people follow NC percentage. You can even follow the instances where a non-conforming product has been dispatched to the customer, or you can monitor customer complaints also. Customer complaints, you can monitor rework percentage. Okay, you can monitor downgrade percentage, how much material you have downgraded.
how much material you have downgraded, you know, how much customer complaints you have, so that you can take quality objectives. One or more of such quality objectives you can take, KRAs you can take to monitor the performance of your process. Got it? Process means process of control of non-conforming output. And what you are going to get from this procedure? You are going to get NC material record, NC tags will be generated, rework register will be there, deviation report, inspection report, even CAPA, है ना? CAPA records will be there, corrective action, preventive action records will be there. Now you need to check from this what it is saying. The organization shall ensure that outputs that do not conform to their requirements are identified and controlled to prevent their unintended use or delivery. Now, in this procedure, when there is a procedure, you need to check how they are going to identify. Okay, they are utilizing the tags to identify. So material is being identified. They have taken the risk, address the risk of material being dispatched to the customer, NC material, or NC material with the OK material. These are the risks they identified. अब इसके लिए उन्होंने कुछ एक्शंस लिया है क्या? हाउ दे आर अवॉइडिंग दैट वन? तो उनकी प्रोडक्ट रिलीज प्रोसीजर में इन सब चीजों का रेफरेंस होना चाहिए कि यस दे विल चेक द मटेरियल बिफोर डिस्पैच टू द कस्टमर, so that only OK material is dispatched. Now, the organization shall take appropriate action based on the nature of non-conformity and its effects on the conformity of products and services. Okay? अब आप जो यहाँ पे ले रहे हो, है ना? These are the various actions you are taking. You are identifying it, you are segregating it, you are doing the reworking. Okay? So all these actions you are taking. The organization shall deal with the NC output in one or more of the following ways. Okay, so non-conforming material bana to what you are doing, you can ask them. As an internal auditor, you need to ask them when the non-conforming material is produced, what are you doing? So they may say, वो लोग आपको क्या बताएंगे? Yes, we are correcting the non-conformity by doing the rework. We are basically segregating it, containing it. Okay. Maybe we are returning it, we are informing to the customer. So you can ask what you are going to do in case a non-conforming output is dispatched to the customer and you come to know it after the delivery. उनको कस्टमर ने नहीं बताया बट इनको पता चल गया कि नो इन दैट पर्टिकुलर बैच देयर इज अ नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल. सो यू नीड टू आस्क देम हाउ यू आर गोइंग टू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू. और ये जो उनकी प्रोसीजर है यहाँ पर कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट की जो क्वालिटी प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि यस इन द इवेंट ऑफ नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल इज डिस्पैच टू द कस्टमर वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म देम, है ना? क्या एक्शंस लेने वाले हैं वहां पे लिखा होना चाहिए उनकी प्रोसीजर में. अदरवाइज वर्बली आज कोई एक बोल रहा है कल कोई और बोलेगा, कुछ और बोलेंगे. सो यू नीड टू हैव इट इन द ऑन द डॉक्यूमेंट. Obtaining authorization for acceptance under concession. So these are the various actions they can take. Okay, you can ask them. ऐसा कोई केस हुआ है जहां पे आपका मटेरियल नॉन कन्फर्मिंग था बट आपने कस्टमर से उसका वेवर लिया है कि यस ओनली स्लाइट चेंज है इसमें फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट, ओनली 0.01 यूनिट्स. ओके, सो कैन यू प्लीज गिव अस अ वेवर टू सेंड दिस मटेरियल. It is slightly below your requirement only by 0.01. So that is basically you are obtaining a authorization for acceptance under concession. Now this conformity to the requirement shall be verified when non-conforming outputs are corrected. तो ये requirement है, तो आपको इस requirement को यहाँ पे कैसे verify करना है? आप उनको पूछेंगे ऑडिटी को. एक तो इनकी यहाँ पे लिखा होना चाहिए नंबर 1. Okay, but
एज अ ऑडिटर यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ टाइम, अगर उनकी कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट की, नॉट प्रोडक्ट बेसिकली है ना, आउटपुट की जो प्रोसीजर है, इफ इट इज ऑफ 5 पेजेस, आर यू गोइंग टू रीड द 5 पेजेस? तो पूरे ऑडिट में आप फिर पेजेस ही पढ़ते रहोगे, उनके वर्क इंस्ट्रक्शन, उनकी कंट्रोल ये। अब आपको उनको क्वेश्चंस वैसे क्रिएट करना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर? क्या पूछ सकते हो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कौन सा होता है? जो कि इवेंट हुआ नहीं है, बट अगर होता है तो किस तरह से रिएक्ट करोगे? तो व्हाट काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यू विल आस्क? यस, डिड यू पीपल फॉरगेट अबाउट द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन? आप उनको क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछोगे फॉर नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट, रिलेटेड टू नॉन कंफर्म प्रोडक्ट? ऐसा क्या सिनारियो हो सकता है नॉन कंफर्मिंग का जो हुआ नहीं है पर हो सकता है? तो आप उनको क्या क्वेश्चन करोगे? विल यू नॉट आस्क देम व्हाट एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक इन केस, और हाउ यू हैंडल इफ अ नॉन कंफर्मिंग मटेरियल इज डिस्पैच टू द कस्टमर? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? समबडी प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके ओके, है ना? सो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, कि अगर आपके यहां से कोई नॉन कंफर्मिंग मटेरियल बाहर गया कस्टमर के पास, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट? तो वो बताएंगे आपको कि उनको बताना पड़ेगा कि यस वी इन्फॉर्म टू द कस्टमर। नाउ आप उनको आगे ये भी पूछ सकते हो, हैज इट बीन रिटन समवेयर? इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ओके, रिटन और नॉट रिटन, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट आप उनको पूछ सकते हो हैज इट बीन रिटन? क्योंकि अगर एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीजें रिटर्न डाउन होती है, दो 9001 इज नॉट आस्किंग, बट ये रिटर्न डाउन होती है। आप उनको पूछ सकते हो, अगर वो बोलते कि यस वी इन्फॉर्म टू द कस्टमर, यू कैन आस्क हैज इट हैपेंड सम टाइम रिसेंटली, ऐसा कुछ हुआ है? अगर वो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ओके नो प्रॉब्लम, है ना? बट कहीं ना कहीं पे आपको ट्रेल मिल जाता है कि ऐसा हुआ हुआ रहता है, तो यू विल गेट टू नो मे बी फ्रॉम द कस्टमर कंप्लेंट, मे बी फ्रॉम समवेयर यू विल कम टू नो, है ना? उनके इंटरनल रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे जैसे था, conformity to the requirement shall be verified when non-conforming outputs are corrected। अब आपको जो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स है ना, जो रिवर्क रजिस्टर है, आपको उनको क्वेश्चंस पूछना है कि वंस द यू आर करेक्टिंग, you are correcting the non-conformance, you have reworked it, do you recheck it again? Do you perform the test again? Do you carry out the test again? अगर वो बोलते कि नहीं वी डोंट कैरी आउट द टेस्ट, इट मींस देयर इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट। जब भी हम नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट को करेक्ट करते हैं, उसको आपको रीचेक करना है ना? मींस कंफर्मिटी अपने को वापस चेक करनी है। अगर हमारा पीएच लेवल फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड वाज 7, पीएच वाज 5, वी हैव एडजस्टेड द पीएच, वी हैव करेक्टेड इट एंड टू गेट द पीएच ऑफ 7, नाउ एक्चुअली 7 हुआ कि नहीं हुआ, ये तो चेक करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग हियर। तो आपको क्वेश्चन पूछना है उनको। फिर नॉर्मली कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स की जो प्रोसीजर है, इट इज ओन बाय द क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, है ना? क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन उनके पास होती है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑडिट होता है, उसके अंदर आपको इस पर्टिकुलर जैसे कैलिब्रेशन की प्रोसीजर या ये प्रोसेस को आपको वेरीफाई करना ही है वहां पर। एंड नाउ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, तो आपको उनको एनसी रिकॉर्ड रजिस्टर मांगना ही है। समटाइम ऑर्गेनाइजेशन में नाम कुछ और हो सकता है, ओके, नेम कैन वेरी, बट जहां पे भी जिस भी रिकॉर्ड में उन्होंने नॉन कन्फर्मिटी को डिस्क्राइब किया है, जहां पे उन्होंने क्या एक्शंस लिया है, एक्शंस क्या हो सकती है? आइदर करेक्शन है, उन्होंने सेग्रीगेशन करना, कंटेनमेंट करना, रिटर्न कर देना मटेरियल, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, और कंसेशन ऑब्टेन करना, ये सब एक्शंस है। तो कौन सी एक्शंस ली गई है?
अगर कंसेशन ऑब्टेन किया है कस्टमर से तो वहां पे होना चाहिए उनके पास, आइदर फ्रॉम द कस्टमर और फ्रॉम द हायर ऑथोरिटीज, तो वो वहां पर होना चाहिए। और आइडेंटिफाइज द ऑथोरिटी डिसाइडिंग द एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, तो वो जो फॉर्मेट रहेगा उसके फाइनली कहीं ना कहीं पे सिग्नेचर होना चाहिए, ओके, कि इन लोगों ने ये एक्शन डिसाइड किया है। So you should be knowing what is the requirement of the standard, and जो प्रोसीजर है उसके अंदर कोई अगर रिक्वायरमेंट आपको दिख जाती है, आप जब गो थ्रू करते हो उसमें से क्विकली, तो वो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आपको चेक करना है कंप्लायंस, ओके। सो बाय वे ऑफ टर्टल डायग्राम इट इज वेरी मच इजी फॉर यू। Another way you can go through or utilize a plan, do, check, act approach also for auditing as well as for designing your quality management system. Hello, Ms. Sarmani, you have any question? You are unmuted. No, sir, your voice is cutting in between. Okay. Hello? Yeah, now it is okay. Yes, sir, now it is okay. Okay. So another way of auditing or managing the organization process is plan, do, check, act. So you can utilize it for auditing also and for managing your processes also, like designing the your quality management system also. अलग अलग प्रोसेस है, तो आपको चेक आप ये कर सकते हो कि मुझे उस प्रोसेस के लिए क्या प्लान करना है, कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए मुझे क्या प्लानिंग चाहिए, किस तरह से मैं वो कैरी आउट करूंगा, क्या मैं उसमें चेक करूंगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू टेक द एक्शन ऑन द गैप्स, ठीक है। सो when you do the audit you can utilize this also, this approach also you can use. You can go through the Turtle diagram also, both the way you can carry out, or you can utilize the checklist also. Initially आप checklist use कीजिए और PDCA भी use कीजिए, and then once you are mature enough go start using the Turtle diagram also. Nowhere it is mandatory कि नहीं Turtle diagram use ही करना है, but during the auditing you have to utilize the process approach. आपको प्रोसेसेस को स्टैंड अलोन नहीं समझना है, आपको प्रोसेसेस को वो एक्टिविटी किस तरह से होती है, इनपुट से आउटपुट से, व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल, द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, हाउ यू आर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस, ये चीजें होनी ही चाहिए। नाउ यू कैन डू इट थ्रू यूटिलाइजिंग द चेकलिस्ट, बाय यूटिलाइजिंग द टर्टल डायग्राम। बेस्ट वे से करना है, बिकॉज ऑडिटिंग नीड्स टू बी अ इफेक्टिव थिंग। Clear? So as a part of the certification also, final certification of this particular internal auditing, you need to prepare the turtle diagram. Everybody we are going to give different process, and for that particular process you need to prepare the turtle diagram. वो मैं आपको कल बताऊंगा when we conclude this training program. Okay, what kind of quizzes are there, what kind of assignments will be there, I will let you know tomorrow. Now finding the NC scenario and reporting. Yesterday I have sent you this NC scenarios. I got it from Mr. Prashant only. He has done the good job of replying to the NC scenarios. Right or wrong, that doesn't matter. He has attempted. We will discuss. Yeah. Now this one also page I am going to share with you. Earlier I have shared with you similar thing having various clauses एंड देयर सब क्लॉजेस। इससे आपको क्या होगा, एक वन पेजर है, मे बी आप एक स्क्रीनशॉट रहता है इसका आपके पास, एज ए इमेज रहती है आपके पास, तो इट विल बी वेरी रेडी रेकॉनर फॉर यू टू चेक कि हाँ कौन से क्लॉज कहाँ पे है। देन यू कैन गो टू द योर ISO 9001 स्टैंडर्ड और उसके अंदर फिर डिटेल चेक कर सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बट इससे आपको एटलीस्ट आ जाएगा कि यस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीज ऑफ प्रोडक्ट इट्स 8.6।
when we are talking about production manufacturing process, it's 8.5. When we are talking about contract review something, so requirements for products and services 8.2. Design and development 8.3. Internal audit 9.2. Here 7.2 competence. Resources related things 7.1, like infrastructure resource, human resource. So all these things come into the resources. So yesterday I have shared this with you, the audit scenario number 1. So I hope everybody has gone through it. Still I am reading it again so that you need to catch the thing. Normally during the auditing ऐसा आपको कुछ होने नहीं वाला कि आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है ना. आपको तो वो जो सीन आपके वहां पे जब सिचुएशन तैयार होगी उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि यस, बिकॉज आपको पता है कि आप कौन से सेक्शन का ऑडिट कर रहे हो, कौन से क्लॉज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपके लिए तो इजी हो जाता है. बट आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो हमने आपको दिखाया कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल होगा, कैसे पता करना है वो. लाइक हियर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट हो रहा है. आपने किसको पूछा? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सो एंड सो अबाउट द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन QMS. अब आप क्या डिस्कस कर रहे हो? व्हाट यू आर डिस्कसिंग? बताइए क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? Yes, tell me what we are discussing. Scope of the organization. Scope of organization. Yeah, scope of the organization. अब ये पॉइंट आपको पकड़ के रखना है बिकॉज नाउ यू स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ही सेज दैट इट इज डॉक्यूमेंटेड इन द क्वालिटी मैनुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने डॉक्यूमेंट नंबर भी बताया. ठीक है. You as an auditor, you have examined the scope and found it is well documented and suitable also. Then you again ask about any requirements of 9001 which is considered not applicable to the organization. अब आपने क्या पूछा? What you have asked? First you have asked about the scope and now you have asked about requirement which is considered to be not applicable to the organization. This is now you have asked him. अब आप ये चेक कर रहे हो. पहले आपने स्कोप के बारे में पूछा, आपने देखा कि यस स्कोप एंड एवरीथिंग इज ओके, सुटेबल है, सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेड भी है. नाउ फर्दर यू हैव आस्क्ड हिम कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है 9001 2015 की जो कि नॉट अप्लीकेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो उन्होंने क्या बोला कि यस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज नॉट अप्लीकेबल. नाउ नेक्स्ट थिंग, फिर आपने क्या पूछा? शो where it has been mentioned in the scope and what is the justification for this non-applicability. आपने क्यों पूछा ये? Why you have asked him about the non-applicability? क्योंकि कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है तभी तो आप क्वेश्चन पूछोगे. यू कैनॉट गो हेवायर हियर एंड देयर. तो जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कहां पे है? सो your MR says it is not mentioned in the scope statement but he can explain verbally. अब ये verbally चलेगा कि नहीं चलेगा ये आपको देखना पड़ेगा. Now you ask him further कि और कोई डॉक्यूमेंट है जहां पे ये नॉन अप्लीकेबिलिटी एंड उसका जस्टिफिकेशन मेंशन किया हुआ है. सो मिस्टर पराग से it is not in any other document and he knows all the documentation of the organization. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि ये स्कोप डॉक्यूमेंटेशन क्या उसकी जिम्मेदारी थी, वेदर ही नोज एवरीथिंग अबाउट दैट और नॉट. अगर उसको नहीं पता है तो आपको फिर उस आदमी को बुलाना है जिसको उसके बारे में पता हो. बट नाउ MR is saying कि नो, he knows all the documentation of this organization and there is no any other document जहां पे ये नॉन अप्लीकेबिलिटी की बात की है उसने. स्कोप आपको सही मिला. अब आप बताइए मुझे स्कोप कहां पे है? ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है कौन से इसमें जाएंगे हम? क्लॉज में जाएंगे रिक्वायरमेंट देखने के लिए. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट.
स्कोप रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन अप्लीकेबिलिटी अगर कोई है 9001 की, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन ओनली यू कैन से कि नहीं ये कन्फॉर्मेंस है कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, और इट इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस। तो स्कोप कौन से इसमें आएगा, कौन से क्लॉज में आएगा स्कोप? बताइए, ये आपके सामने है, वेयर इज द स्कोप? 4.3. 4.3 4.3. yeah, determining the scope of the quality management system, है ना। अब हमको जाना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्कोप रिलेटेड 9001 क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। सो लेट अस गो टू द 4.3। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्कोप होना चाहिए, है ना, स्कोप डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वो भी लिखा है कि उन्होंने सब कुछ, स्कोप तो लिखा है वो उन्होंने बोला कि सुटेबल था, आपको लगा कि यस इट इज सुटेबल, ये सब कुछ उन्होंने कवर किया है, ओके। इट शैल बी अवेलेबल, द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्यूएमएस शैल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ये रिक्वायरमेंट थी। और आपको यहां पे क्या मिला है, द स्कोप स्टेटमेंट found it well documented and suitable। हाँ या इट हैपेंस मिस्टर प्रशांत, है ना। सो it is well documented and suitable, okay, the scope statement you found it and you find it documented also। तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट तो मीट हो गई, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज डॉक्यूमेंटेड। इसलिए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उनको, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, द स्कोप yeah, the scope shall state the types of products and services covered, provide justification for any requirement of this international standard that the organization determines is not applicable। Mrs. Deshmukh, please mute yourself। It is asking you clearly here, है ना, it is asking you clearly here कि स्कोप में जो है अगर कोई रिक्वायरमेंट नॉट अप्लीकेबल है, it should provide the justification and that the organization is not applicable to the scope of its quality management system। ये क्या होना चाहिए, स्कोप डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और स्कोप में क्या होना चाहिए, apart from the types of products and services covered, and it should provide justification for any requirement of this international standard which is not applicable, okay। अब आप देखिए what the MR is saying here, he is saying it is not mentioned in the scope statement। You ask him to show where it has been mentioned in the scope। जो नॉन अप्लीकेबिलिटी बताई थी ना हमने, डिजाइन एंड डेवलपमेंट 8.3, आपने उनको पूछा कि बताइए कहां पे लिखा है, आपने कहां पे मेंशन किया है, तो उन्होंने क्या बताया आपको कि इट इज नॉट मेंशन इन द स्कोप स्टेटमेंट, बट उसकी रिक्वायरमेंट थी क्या अपनी 4.3 में रिक्वायरमेंट है कि ये स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए, इज इट द रिक्वायरमेंट और नॉट? प्लीज टेल मी, इज इट द रिक्वायरमेंट कि स्कोप स्टेटमेंट में नॉन अप्लीकेबिलिटी अगर कुछ है तो वो मेंशन होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए? Yes, sir. It is the requirement, but the MR is saying that it is not mentioned in the scope। इसका मतलब, yes Mr. Prashant? Yes, it is mandatory to mention what is excluded from the scope। Yes, हाँ, they are not using the word exclusion, है ना, 2008 में exclusion था, non applicability है ना, use the word non applicability, okay। I think I have used the excluding word in my statement। हाँ, नो इशू, यू शुड नॉन अप्लीकेबिलिटी अपने को इससे जाना है ना, क्योंकि वो नॉन अप्लीकेबल वर्ड है, एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप यू आर सेइंग इट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन यू, so they have intentionally avoided that word in the this one, but doesn't matter है ना, intent हमारा सेम ही है कि yes it is not applicable to the organizations। so this is asking कि yes ये होना चाहिए, but वो नहीं है। अब हम जब ये भरेंगे
रिक्वायर ये नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, तो इट इज अ सिंपल वे आई एम टेलिंग यू. नॉर्मली जो नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं अलग से बताऊंगा आपको. फॉर द एक्सरसाइज पर्पज सबसे पहले तो हम, ये आपको भी एक्सरसाइज मिलेंगी है ना, ये तो मैं जस्ट वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल्स एज अ पार्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रोसेस फॉर इंटरनल ऑडिटर. आपको 2-3 सिनेरियोज मिलेंगे. मुझे आपको इन चीजों को आइदर हैंड रिटन भर के नेम डालना है, आपका ISO 9000 का क्लॉज डालना है, ये सब चीजें भर के भेजना है. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दैट वन. सो ये जो नाम रहेगा वो डालना है. नाउ क्लॉज नंबर, व्हाट इज द क्लॉज नंबर? 4.3. ओके. एंड अगर आप सिर्फ 4.3 मत डालिए, यू प्लीज मेंशन दी दिस कौन सा? थिंग ऑल्सो, है ना. हाँ, यस. डिटरमाइन determining the scope of the quality management system. हे दोन्ही पण खालचे नाहीये. Mr. Prashant, please mute yourself. Mr. Prashant. आपको ये लिखना है ना, determining the scope of quality management system. Okay. Now what is the clause requirement? ये मैंने ऑलरेडी भर के रखा है, तो है ना. So you can either write the complete thing, और जो क्रक्स रहता है कि द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस QMS shall be documented including any non applicable requirement with justification. This is what is required by the standard. यहाँ पे क्लियर कट है ये, है ना, कि जस्टिफिकेशन है वो भी होना चाहिए, है ना. फिर नॉन कन्फॉर्मेंस स्टेटमेंट है. नो इश्यूज, है ना. नॉन कन्फॉर्म, अब आपका नॉन कन्फॉर्मेंस क्या आएगा, आप बताइए. व्हाट यू थिंक कि नॉन कन्फॉर्मेंस क्या है? Non-conformance statement will be basically opposite of the conformance. Conformance क्या चाहिए था? The scope of organization's QMS shall be documented including any non-applicable requirement with justification. तो आपको क्या what is your finding? आपको क्या non-conformance मिला? The non-applicable parameter was not mentioned in the QMS. हाँ, so you can say the non-applicable requirement with justification is not mentioned or is not documented in the scope of the organizations of the QMS. एक मिनट, of the organizations QMS. This is your statement. स्टेटमेंट नॉर्मली जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा. जो रिक्वायरमेंट है ना, आई वॉज सपोज टू गो लेफ्ट साइड, तो नॉन कन्फॉर्मेंस क्या होता है? आई डिडंट वेंट टू द लेफ्ट साइड, दैट इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस. मुझे लेफ्ट में जाना था, मैं नहीं गया, दैट इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस. सो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए था, इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड. एंड व्हाट इज द एविडेंस नाउ? एविडेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एविडेंस में आपको क्या डालना है? ये सब चीजें. आप ये क्यों पूछते हो ये सब चीजें, है ना? व्हाई यू आर आस्किंग? इसमें आप देखिए, व्हेन यू स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस, है ना, आप उनको पूछते हो उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. आपने डायरेक्ट जाके ये नहीं पूछा कि नहीं आपकी नॉन एप्लीकेबिलिटी बताओ मुझे. ये दिस इज कॉल्ड फनेलिंग टेक्निक, है ना. आप उसको फनेल डाउन करते हो कि यस, प्रॉपर तरीके से इधर स्पिल आउट नहीं होने देते, और ये आपको जो चाहिए वहां पे जाके आप इसको ये कर देते हो, है ना. तो आपने क्वेश्चंस पूछे उनको कि स्कोप कैसे है, क्या क्या है, क्वालिटी मैनुअल कौन सा है ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर किया आपने. एंड देन यू गो टू द नॉन एप्लीकेबिलिटी. डायरेक्टली नॉन एप्लीकेबिलिटी जम नहीं किया आपने. ओके. सो दिस इज हाउ यू नीड टू चूज द क्वेश्चंस. अब यहां पर आपको जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज अ ऑडिट एविडेंस. आपने ये चीज डालना जरूरी है. विच वन? कि आपने किनको इंटरव्यू किया. यू हैव इंटरव्यूड मिस्टर पराग
MR and he is management representative, उनका employee ID, quality manual of the organization, document number QM A1, page number 5. Design and development is considered non-applicable requirement, but it is not documented as part of the organization scope, है ना? ठीक है, ये जो है आपका जो एविडेंस रहेगा ना, इट शुड सपोर्ट योर नॉन कन्फॉर्मेंस, ठीक है ना? जो नॉन एविडेंस, अगर कोई बोले कि जस्ट फ्रॉम दिस वन आई कैनॉट फिगर आउट एक्चुअली व्हाट मिस्टेक और व्हाट इज द गैप, इसके बेस पे आप कोई एक्शन ले सकते हो क्या, मुझे बताइए? कैन यू टेक अ एक्शन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? अगर ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कहां पे प्रॉब्लम था? तो फॉर दैट पर्पस एविडेंस इज रिक्वायर्ड. Evidence is required to support the finding. The finding was the non-applicable requirement which justification was not documented. अब एक कौन सी non-applicable requirement थी वो तो पता हो ना, किसने बताया? ये कल कहीं जाके डिस्प्यूट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यस यू हैव इंटरव्यूड मिस्टर सो एंड सो, जिनका एम्प्लॉय आईडी ये था, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी मैनुअल जो था आपके ऑर्गेनाइजेशन का QM A1, उसके पेज नंबर 5 पे स्कोप डॉक्यूमेंट था. 10, 15, 20 पेज का क्वालिटी मैनुअल होगा, उसमें से 5वें नंबर के पेज पे स्कोप स्टेटमेंट था आपके ऑर्गेनाइजेशन के QMS का, जिसके अंदर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यू कैन इवन राइट ISO क्लॉज नंबर 8.3, design and development is not considered, is considered non-applicable requirement for the organization's QMS, but it is not mentioned as part of the scope of the organization, including no justification, है ना? No justification for, वो तो ऑलरेडी आपका ऊपर आ ही गया है, नो प्रॉब्लम, है ना? सो नो नीड टू राइट. सो नाउ दिस इज कॉल्ड द ऑडिट एविडेंस, है ना? तो प्रशांत जी आपको थोड़ा यू नीड टू दिस वन, है ना? आपने लिख के भेजा है, गुड, है ना? यू हैव अटेम्प्टेड. उसमें कुछ चीजें आपको इंप्रोवाइज करनी पड़ेगी, क्लॉज रिक्वायरमेंट एंड नॉन कन्फॉर्मेंस स्टेटमेंट. Okay, sir. Understood. हाँ, but anyways you have tried, that is a good thing, that is what is important. Okay. Yeah, so I hope everybody understood how to find the NC scenarios. इसमें किसी को कोई इशू है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप देखिए कि जस्ट वन रिक्वायरमेंट है जो रिलेटेड टू द क्लॉज स्कोप ऑफ द QMS, उसके ऊपर आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है ना? आप क्वालिटी मैनुअल देखोगे, स्कोप स्टेटमेंट आप पूछोगे कि स्कोप ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्कोप है, आप स्कोप देखोगे, कहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है आप पूछोगे. यू मस्ट, आप ये भी पूछ सकते हैं, यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड इट. अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड इट. आप क्या कर रहे हो उनको? यू आर कंपेलिंग हिम टू आंसर इन अ स्पेसिफिक वे दैट यू वांट. तो उसको कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं हम? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज? आप क्या पूछ रहे हो उनको? यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड इट. तो वो क्या बोलेंगे? नो वी हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड. आइदर यू कैन से प्लीज शो मी, और यू कैन लीड हिम. इट इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन. You are leading him to answer whether he has documented or not. It is a close-ended also, yes or no टाइप भी हो सकता है, बट वो कब होगा? जब आप उसको पूछोगे कि have you documented it somewhere, और यहाँ पे क्या बोलोगे आप? You must have documented it. मीन्स आप उनसे बोलना चाहते हो कि मस्ट मीन्स आपने इसको तो डॉक्यूमेंट किया ही होगा. तो बोलेंगे नहीं सर हमने तो नहीं किया. इसका मतलब वो आपको डॉक्यूमेंटेड किया कि नहीं किया उसका जवाब दे रहे हो डायरेक्टली. तो आप उनको लीड कर रहे हो कि हाँ मुझे इस तरह से आंसर दो. दिस इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन.
सो मोर ओवर द इम्पोर्टेंस इज नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, कि आप उसको किस टाइप का क्वेश्चन बोलते हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हो, दैट मैटर्स. यू कॉल इट क्लोज एंडेड, यू कॉल इट लीडिंग, दैट डजंट मैटर, पर आपको क्वेश्चंस का चॉइस प्रॉपरली होना चाहिए, है ना, वन बाय वन क्वेश्चन. उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए. नाउ चेकलिस्ट में प्रॉपर आ जाएगा. आप जब चेकशीट बनाओगे, इसकी चेकलिस्ट बनाओगे, व्हेन यू आर ऑडिटिंग क्लॉज नंबर 3, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? इज द स्कोप ऑफ द QMS documented? Is the non-applicable requirements identified? Yes or no? Yes होगा तो is the justification for the non-applicable requirements are given, determined? Are the non-applicable requirement and the justification is part of the organization's QMS scope? अब उसका आंसर नो है तो नॉन कन्फॉर्मेंस है, यस है तो ओके, आगे बढ़ो. तो इस तरह से आप चेकशीट भी बना सकते हो. ठीक है. नाउ ऑडिट सिनेरियो नंबर 2. ऑडिट सिनेरियो नंबर 2. जस्ट अ मिनट, है ना. मिसेस देशमुख, कुड यू प्लीज रीड दिस वन कंप्लीट? Audit scenario 2. During auditing risk and opportunities, you, auditor, interview Mr. Akash, who is management representative and is also responsible for risk and opportunities document. He show you the document risk 1, 2, 3 containing risk and opportunities identify the organization. You found out that almost all the internal and external factors that can pose the risk and present the opportunities are determined and addressed. But the risk and the opportunities that can affect the conformity of the products and services and the ability to enhance customer satisfaction are not determined and addressed. When asked Mr. Akash about this, he is not aware about this requirement and may have skipped it while preparing the risk and opportunity document. नाउ हियर यू नो कि आप इन जब आप ऑडिट करने जाते हो आपको पता ही है कि रिक्वायरमेंट किसकी ढूंढनी है, बिकॉज यू आर ऑडिटिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, तो यू नो कि यस मैं इस क्लॉज को चेक कर रहा हूं, चेक कर रही हूं. सो नाउ टेल मी विच क्लॉज इज रिलेटेड टू दिस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. Let me go back, show you this. Where is the risk and opportunities? It comes in the PDCA साइकिल जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसकी प्लानिंग फेज में आता है. और प्लानिंग फेज में दो क्लॉजेस है, क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 6. ओके, when you are taking care of or we are talking about the risk, it means we are talking about the clause 4 and clause 6. okay, but वहां पे जब जाओगे आप, ये थोड़ा ट्रिकी था, इसके अंदर आपको मिलेगा नहीं वहां पे वो, है ना. when you go to 6.1 and start to find out that particular thing what we are discussing, वो आपको मिलेगा नहीं वहां पे, है ना. you will find it in the leadership, क्योंकि आपको ये पता होना कि अपार्ट फ्रॉम दैट कहां पे दिया हुआ है वो जो कस्टमर फोकस है ना. इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, यू नीड टू फाइंड आउट कि ये किसके बारे में बात कर रहा है. एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना, conformity of the products and services. So the risk and opportunities that can affect conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are not determined and addressed. तो ये आपको फाइंडिंग मिली है, पर तो क्या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड में या नहीं है? आपको पता करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है which is talking about enhancing the customer satisfaction and those which affect the conformity to the products and services. तो वो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे इन द कस्टमर फोकस,
that is in the clause number 5.1.2. क्या बोला है उन्होंने? Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the customer focus by ensuring this legal requirement are understood, consistently met, the risk and opportunities that can affect conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed. उसको डिटरमाइन भी होना चाहिए और एड्रेस भी करना चाहिए इनको. किसको? The risk and opportunities which can affect conformity of products and the ability to enhance customer satisfaction. तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए. देखो, ऑडिटिंग इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, है ना. इट इज नॉट दैट कि 9001 की रिक्वायरमेंट लिया और हमने चेक कर लिया. आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. जो ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको व्यू करता आना चाहिए, है ना. तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो स्किल होती है ना, ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो अच्छी होना चाहिए, है ना. यू शुड go to that pinpointedly, go to that particular things. अब एज अ एमआर मैंने अगर आपको दिखा दिया डॉक्यूमेंट की ये है सर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, और आपने देख के साइड में कर दिया कि हाँ डॉक्यूमेंट नंबर सो एंड सो अवेलेबल, नो, दैट इज नॉट ऑडिटिंग. थोड़ा कंटेंट भी देखना है हमको, और स्पेसिफिकली कौन से देखना है? जहां पे रिक्वायरमेंट्स थी. उन्होंने 25 अलग अलग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किया होगा, ओके, दैट इज वेल एंड गुड, बट जो रिक्वायर्ड है वो भी तो होनी चाहिए. एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड है वो तो होनी ही चाहिए. तो जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है जो कि कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंपैक्ट करती है वो डिटरमाइंड होनी चाहिए और एड्रेस होनी चाहिए. ये आपने उनको पूछा स्पेसिफिकली कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन पोज रिस्क एंड प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटीज आर डिटरमाइंड एंड एड्रेस, है ना. आपने बोला कि ऑलमोस्ट ऑल उन्होंने किया है, बट द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ये जो चीजें थी वो ना डिटरमाइन की गई है ना एड्रेस की गई है. देन अगेन यू कंफर्म विद द मिस्टर आकाश, ओके. आपने उनको पूछा कि आपने इसको डिटरमाइन और एड्रेस क्यों नहीं किया है, तो उन्होंने बोला कि ही इज नॉट अवेयर अबाउट दिस रिक्वायरमेंट एंड they may have skipped it while preparing the risk and opportunity document. इसका मतलब उन्होंने स्किप कर दिया इसको. तो ये एनसी जो है ना ये एमआर पे नहीं आएगी. दिस एनसी विल बी टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है. अब टॉप मैनेजमेंट के ऑडिट में जो हमने कल किया था, कल मैंने आपको बताया था कि मेनी ऑफ द थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू वेरीफाई विद द टॉप मैनेजमेंट इटसेल्फ. आपको वो बाद में किसी और सेक्शन में जाके देखना पड़ सकता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना था. दैट टाइम they may not be able to show you the document related to that one, बट आपको नोट डाउन करना है कि यस मुझे वहां पे जाके इस डॉक्यूमेंट को एक बार चेक जरूर करना है. तो आप वहां जाओगे और डॉक्यूमेंट को चेक करोगे, है ना. आप वहां जाके डॉक्यूमेंट को चेक कर लोगे. तो आपने एमआर के पास जाके डॉक्यूमेंट चेक किया और आपको मिला, तो इसका मतलब दिस एनसी विल बी टू द टॉप मैनेजमेंट. नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग द एनसी, है ना. सो यू विल अगेन मिस्टर मिस जो भी आपका नाम रहेगा आपको लिखना पड़ेगा. वो 9001 का क्लॉज कौन सा है? 5.1.2, दैट इज कस्टमर फोकस. मींस 1.2 कस्टमर फोकस, ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्लॉज रिक्वायरमेंट? द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन इंपैक्ट. है ना. सो द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन इंपैक्ट दिस आर addressed, are determined and addressed. This is the requirement. ये तो क्लॉज का रिक्वायरमेंट क्लियर कट है, बी में लिखा है. इवन यू कैन स्पेसिफिकली से दिस ऑल्सो, है ना, कस्टमर फोकस, एंड यू कैन से बी. यहाँ पे जब आपको क्लॉज का रेफरेंस देना है तो यू कैन क्लियरली से बी नंबर. नाउ
This is what is the requirement. And what is the non-conformance then? How you will frame the non-conformance? Very simple. आर नॉट, बस आपको एक चीज डाल देनी है कि ये मीट नहीं किया है. दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज नॉट डन. दैट इज योर नॉन कन्फॉर्मेंस स्टेटमेंट. द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन अफेक्ट दिस and enhance customer satisfaction are not determined and addressed. Finish. Now what will be the evidence? Now evidence will be you have to take it from here, है ना. आपने क्या किया? इंटरव्यू किया. So interviewed Mr. Akash, management representative, employee code so and so. Okay, आपने उनको किया. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, डॉक्यूमेंट नंबर रिस्क 1 2 3. और क्या है इसमें? या दैट इज इनफ कि आपने ये किया और ये वाला डॉक्यूमेंट देखा, उसके अंदर आपको पता चला कि ये एड्रेस नहीं की गई है. फिनिश. Any doubt in this? Is this scenario any doubt? सर इसमें 6.1 का कहीं पे भी रेफरेंस नहीं आएगा क्या? नहीं, 6.1 में तो क्या है कि आप अगर वो नहीं रहती ना कि जो भी अप्लीकेबल थी, ये आपने ऑलरेडी चेक कर लिया यहाँ पर, है ना, कि almost all internal external factors that can pose risk and present opportunities are determined and addressed. ये तो आपने एड्रेस कर दिया. तो यहाँ पे 6.1 का नहीं, क्योंकि 6.1 में कहीं पे भी आप देखना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हो. उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहीं पे भी नहीं है 6.2 में, है ना. ये ट्रिकी था थोड़ा सा, बिकॉज नॉर्मली पीपल विल जंप टू द 6.1. बट एज आई टोल्ड यू, क्योंकि जब आप ऑडिट करते हो ना, तो यू ऑडिट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट. तो एक्चुअली यू नो कि यस मैं इस क्लॉज के अगेंस्ट में मैं चेक कर रहा हूँ. सो यू विल फाइंड आउट इट वेरी इजीली कि यस. बट ये पर्टिकुलर थिंग ऐसी है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कि वो आपको 4 पॉइंट में भी मिल जाएगी उसका मेंशनिंग, 6 में तो है ही है, एंड इन 5.1.2 ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना. आप अगर 6.2 को क्लियरली देखोगे तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा वो, है ना. वो आपको मिलेगा इसमें कस्टमर फोकस में, एक क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये होना चाहिए. ठीक है. नाउ let us go through the audit scenario number 3. This is the new one. Okay, so what we will do, because you people is not having this one 3 number, so there are two ways. Either we can complete it now, or I can give it as a home assignment to you people, and tomorrow we are concluding tomorrow this training session. So before that we will discuss this one. तो आप लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि 2 आपको ए मिले हुए हैं अभी, वी आर डिस्कसिंग डिटेल दिस थिंग. सो दिस इज अनदर वन, थर्ड वन, है ना. सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द applicable clause here. It will be given to you as a home assignment. Okay, so मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे मैंने कल किया था वैसे ही. जस्ट थोड़ा सा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, चेक कीजिए क्या लगता है आपको, क्लॉज क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है ना. So it will be more fruitful. Then tomorrow we will discuss this and then we will conclude the session. Now let us go through the quality procedure for internal auditing. अभी इंटरनल ऑडिटिंग की एक क्वालिटी प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाते हैं. We will just have a break for 2 minutes, okay, and then we will start again. And must be having this also, है ना. So just जाके देखिए कि how it is done in at your organization, है ना. नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर रहे, जैसे कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट है, कैलिब्रेशन की अगर कोई प्रोसीजर आप बना के रखते हो, बेसिकली इट इज नॉट अ कैलिब्रेशन प्रोसीजर. ओके, इट इज कंट्रोल ऑफ
मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं, किस तरह से वेरिफिकेशन कैसे करना है, कैलिब्रेशन, एक्चुअल कैलिब्रेशन करना है, दैट विल बी अ वर्क इंस्ट्रक्शन, बट एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना है, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस एक्टिविटी, उसके लिए क्वालिटी प्रोसीजर्स होती है ना। इट गिव्स यू द गाइडलाइन बेसिकली कि किस तरह से हमको काम करना है। अब उसी में क्या होता है कि नॉर्मली पर्पस रहेगा, एक स्कोप रहेगा, आपकी वो जो प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर है हमारी प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट। ठीक है, उसमें इशू नंबर, इशू डेट, रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट रहते हैं। अब जो प्रोसीजर है हमारा, उसको हमने, अब ये प्रोसीजर भी जब बनती है ना, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द ISO 9001, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है ये, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंसीडर करके ही बनाना है, जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 9001 2015 ISO, सो इट इज बेस्ड ऑन दैट। तो आपको क्या करना है, ऑडिट प्लानिंग, बेसिकली हमारी जो ऑडिटिंग है उसके अंदर क्या है, ऑडिट को प्लान करना पड़ेगा, देन इंटरनल ऑडिटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा 3.2, देन ऑडिट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड देन जो ऑडिट नॉन कन्फॉर्मेंस है उसको क्लोजर करना पड़ेगा, और ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना है हमको, क्योंकि उसके अंदर एक था कि मैनेजमेंट को ऑडिट के रिजल्ट्स हमको इन्फॉर्म करने हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। सो ये 5 सब स्टेप्स है इसकी प्रोसीजर की। ऑडिट प्लानिंग, अब आप देखिए ऑडिट प्लानिंग में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी इन द 9.2, वो यहां पर एड्रेस हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर ये भी आता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सब चीजें क्वालिटी प्रोसीजर में मेंशन की जाती है, ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे, कोई एम्बिग्विटी ना रहे। कौन करेगा, तो MR प्रिपेयर करेगा हमारा। आई होप इट इज विजिबल टू यू, आई एम जस्ट एनलार्जिंग इट, या। सो MR prepare the annual internal audit plan and frequency of 6 months, है ना। 9000 उन्होंने बोला है कि 6 months, नो, नाउ इट इज योर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड बाय यू। तब आप इंटरनल ऑडिट में जब जाओगे तो आप क्या चेक करोगे, क्या इंटरनल ऑडिट है 6 महीने में किया गया है या नहीं किया गया है, इंटरनल ऑडिट का प्लान अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर आपके हाथ में रहेगी। आप इसमें से क्या चीजों को फोकस करना है आपको, ऑडिट प्लान, फ्रीक्वेंसी, कब कब करते हैं, हाउ मेनी टाइम इट इज डन, हु डज इट, ऑडिटर्स, उनकी कॉम्पिटेंसी, उसके ऊपर फोकस होना। आप ये पूरे थ्रू नहीं जाओगे, आप तो उनको पूछोगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर वो आपको बताएंगे 6 मंथ। आप उनको बोलोगे वेयर इट इज रिटर्न, फिर वो बताएंगे कि यस इट इज रिटर्न हियर, वो आपको दिखाएंगे ये चीजें। इसके बेस पे आप इंटरनल ऑडिट शेड्यूल बनाओगे। कौन बनाएगा, MR बनाएगा, और जिसके अंदर ऑडिट स्कोप, कौन सी प्रोसेस ऑडिट करना है, डेट ऑफ ऑडिट, टाइम, फंक्शन, ऑडिट ऑडिटर, जो मैंने आपको इसका फॉर्मेट दिखाया था वो फॉर्मेट बनाया इसके बेस पे, इंटरनल ऑडिट शेड्यूल, ये कंटेंट उसके अंदर है। अब आपने बोला कि ऑल प्रोसेसेस एंड क्लॉजेस टू बी कवर्ड इन ईच ऑडिट, अब ये आपने लिख दिया है, हर एक ऑडिट में सब प्रोसेस और सब क्लॉजेस कवर होने को ना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि नहीं हमको नहीं करना है ऐसा, है ना, तो आप वहां पे क्लियर कट लिख सकते हो, है ना, बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस एंड द नॉन कन्फॉर्मेंसेस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट, risk associated that particular process, the audit, the processes are selected, है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऑल प्रोसेसेस एंड क्लॉजेस टू बी कवर्ड इन ईच ऑडिट, मीन से 6 महीने के हैं। आप उनको ये भी बोल सकते हो कि इफ डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस और द नॉन कन्फॉर्मेंसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट और कस्टमर ऑडिट, the internal audit can be planned specifically for a particular process। आप ये भी लिख सकते हो। यहां पर 9000 ने कुछ नहीं बोला है, आप आपका डिजाइन करो, आपका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए।
अब उन्होंने बोला है कि ऑडिटर आपको सिलेक्ट करना है एज पर 3.2, फिर देखेंगे 3.2 में इंटरनल ऑडिटर कैसे सिलेक्ट करते हैं, है ना। ये देखिए, एडिशनल ऑडिट कैन बी शेड्यूल्ड अपार्ट फ्रॉम सेट फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ऑडिट और चेंजेस इन द की पर्सनल प्रोसेस टेक्निक्स। ये मैंने डाल दिया इसमें ऑलरेडी, है ना। अब आप क्या करोगे, इंटरनल ऑडिट जो है शेड्यूल जो है हम सर्कुलेट करते हैं ऑडिटर और ऑडिटी को एटलीस्ट 3 days बिफोर द ऑडिट डेट। हमने डिस्कस किया था उस दिन, है ना, कि इनको सफिशिएंट टाइम पहले आप भेज दो, वो आप लिख लो कब भेजा है। एंड चेंजेस इन प्लान ऑडिट डेट्स नीड डायरेक्टर्स अप्रूवल और सीओज अप्रूवल और एमडीज अप्रूवल और प्लांट हेड्स अप्रूवल। जो आपको लगता है आप वहां पे लिख सकते हो, बट कोई चेंजेस अगर है तो अप्रूव्ड जरूर होने चाहिए, ताकि आप इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने शेड्यूल तो किया और लोग कर ही नहीं रहे एक एक महीना, है ना। आई हैव केम अक्रॉस सच सिचुएशन, आपके साथ भी अगर ऐसी होती है, देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू एड्रेस इट, है ना, बहुत सिंपल वे है एंड इट गिव्स रिजल्ट 100%। ओके, इट इज अ प्रूवन थिंग, इट इज अ टेस्टेड थिंग। वी हैव फाउंड दैट इन वन ऑफ द ऑडिट that people are postponing it almost by 18 days. Few audits were by 15 days, few audits by 21 days, few people were doing 6 days, 7 days. Nothing was less than 7 days, है ना, 12 days. These are the delay of the audit. So what is the sanctity of that audit schedule? क्या रहेगी उसकी ये audit schedule की कोई कीमत ही नहीं है, फिर कोई सीरियसनेस ही नहीं है। अब how you are going to address, आप कैसे एड्रेस करोगे बताइए आप मुझे। यू हैव एनी आइडिया ऑन हाउ टू एड्रेस सच थिंग, कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है ऑडिट्स कंडक्ट कराने की, है ना। यू आर बेसिकली एमआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑडिट कंडक्ट कराने हैं एज पर शेड्यूल ऑन टाइम, और इस तरह के डिलेज हो रहे हैं, तो आप कैसे एड्रेस करोगे इसको। बताइए आप, इफ यू हैव सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड। यस मिस्टर प्रशांत। Mr. Prashant, you are talking because you are not audible. सर हाँ, yes. मैनेजमेंट रिव्यू में भी वो चीज अपन उठा सकते हैं, और इंडिविजुअल जो एचओडीज है और जो हाँ, वर्किंग टीम है उनके साथ बात कर सकते हैं, yes. व्हाट डिलेज है अपनी। आपको कैसे भी करके इसको प्रेजेंट करना है, इन द मैनेजमेंट रिव्यू में करो, या फिर देखिए आप इंफॉर्मेशन जो हमको भेजनी है, डोंट वेट फॉर द मैनेजमेंट रिव्यू ऑल्सो, है ना। मैनेजमेंट रिव्यू तो हो सकता है कि 6 महीने में एक बार हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है। इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, है ना, तो मैनेजमेंट मीटिंग में आपको इस पॉइंट को जरूर उठाना है, प्रॉपरली देना है कि आपको ग्राफ वगैरह प्रॉपर बना के यहाँ पे सेक्शन ऑडिटी के नाम डाल दो, ऑडिटी एंड ऑडिटर, ओके, ग्राफ बना के भेज दो मस्त पैकी कि यस दीज आर द ऑडिट डेज डिले, प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट। लिटरली इट गिव्स द रिजल्ट। आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करो, मैनेज एंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, आप जो भी इंटरनल ऑडिटर ऑडिट है सबको बुला के स्पेसिफिक एक सेशन इसी के लिए, सिर्फ रिजल्ट ऑफ द ऑडिट्स, उसके अंदर बताना है कि इतनी एनसीज मिली, ये ऐसा ऐसा हुआ, साथ ही साथ इतने डेज डिले हुआ है। आप देखिए आपके टॉप मैनेजमेंट क्या बोलते हैं। इफ दे आर सीरियस अबाउट दिस थिंग, दे विल से कि अगले टाइम नथिंग, नो डिले इज परमिटेड विदाउट अ परमिशन फ्रॉम हिम इटसेल्फ। नेक्स्ट ऑडिट में आप देखना मैक्सिमम ऑडिट टाइम पे होंगे, 1 या 2 ऑडिट 2 या 3 दिन डिले, मैक्सिमम 3 days डिलेस के अंदर सब ऑडिट आपके परफॉर्म, एंड इट हैज हैपेंड। बट यू नीड टू हाईलाइट इन अ प्रॉपर वे, है, इट इज नॉट, यू नीड टू टेल टू योर टीम ऑल्सो कि इट इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग। हमको पता है कि यस एवरीबडी इज बिजी, वी आर नॉट सेइंग कि पीपल आर इंटेंशनली डूइंग दिस, we are just saying कि we need to focus this activity also, it is also one of the important activity. Secondly, आप मैनेजमेंट ने क्या किया था, इसको उनके केआरए में डाल दिया, है ना, कि जो हमारे इंटरनल ऑडिटर्स है, जो भी उनका अप्रेजल होता है ना, तो उनके जो 100% आती थे कि फ्रॉम दिस वेरियस केआरएस थे उनके, तो इंटरनल ऑडिटर का 5% कंट्रीब्यूशन इट वाज फ्रॉम द
इंटरनल ऑडिटिंग, और उसका फिर फीडबैक कौन देगा? तो एमआर को देना पड़ता था, हु हैज डन प्रॉपर ऑडिट, हु हैज डन ऑन टाइम ऑडिटिंग। सो ऑन टाइम ऑडिट, इफेक्टिव ऑडिट, उसको मिला के 5% था। तो आपका जो ईयरली अप्रेजल है उसके अंदर इट इज वन ऑफ द KRA। व्हाई पीपल आर नॉट फोकस्ड, व्हाई इंटरनल ऑडिटर्स आर नॉट फोकस्ड? बिकॉज उनको पता है कि उनको उनका जो अप्रेजल होने वाला है, उनके KRA सर्टन डिफरेंट है। मैनेजमेंट इज आस्किंग देम प्रोडक्शन, मैनेजमेंट इज आस्किंग देम मेंटेनेंस की ये, because internal auditing is the additional responsibility they have got. Okay, it is not a full time job ना internal auditing, it is an additional responsibility. तो उनके KRA में तो कुछ और ही है। परचेस का आदमी है तो उसके ऊपर जो परचेस की कॉस्ट है या फिर उसके ऑन टाइम डिलीवरी है, उसके ऊपर उसका अप्रेजल हो रहा है। nobody is evaluating his performance on the quality of internal audit or on time performance of the internal audit। तो आपको उनके KRA में तो ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज मैनेजमेंट के डर से एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, अल्टीमेटली फिर वो बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि मशीन भी प्रॉपर टाइम पे ब्रेकडाउन क्लियर होने को ना, एंड यू आर आस्किंग दिस ऑल्सो, तो हाउ टू मैनेज बोथ द थिंग्स? सो अल्टीमेटली आपको KRA में डालना है उनके 5%, 10% कंट्रीब्यूशन शुड बी फ्रॉम दिस वन। और वो ऑडिटी के लिए भी रहता है, और ऑडिटी के जो हेड है, HOD है, उनके इसमें रहेगा वो, और जो आपके इंटरनल ऑडिटी है और इंटरनल ऑडिटर है आपके, उनके इसमें रहेगा, और ऑडिटी जो है उनके जो सेक्शन हेड्स है उनके इसमें भी वो एज अप्रेजल है कि ऑन टाइम कितने ऑडिट इन्होंने परफॉर्म करा है। बिकॉज डिले इज नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ऑडिटी एंड द ऑडिटर। तो दोनों को आपको प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। एंड देन देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर्स। किस तरह से आप ऑडिटर सिलेक्ट करोगे? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको ये करना है कि हम उनको ट्रेंड करते हैं। आपने बोला कि हु आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क बीइंग ऑडिटेड, इसके अंदर इम्पार्शियलिटी जो है, मींस इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए। ये आपने क्लियर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क बीइंग ऑडिटेड, जो सेक्शन को करने वाले हैं उसके रिलेटेड नहीं है वो लोग, है ना। The internal auditors are certified either by competent external agency for carrying out internal quality audits. If need be, competent external outside auditors can also be employed at the discretion of MR after due approval from director. So internal audit कौन carry out करेगा? आपके आके trained लोग जो कि certified internal auditors है। आप उनका क्राइटेरिया अगर आपको लगता है तो आप वो बना सकते हो। दे मस्ट बी हैविंग 1 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप लगा सकते हो, है ना। क्योंकि टेक्निकल जो सेक्शन है उनको ऑडिट करने के लिए आपको उस इंडस्ट्री के वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है इफेक्टिव ऑडिटिंग के लिए, ठीक है ना। तो आप वो क्राइटेरिया लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ISO 9000 इज नॉट सेइंग अगेन एनीथिंग। फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन, कि हमको किस तरह से ऑडिट एग्जीक्यूट करना है, वो सब यहाँ पे दिया है इस प्रोसीजर में कि कैसे कैसे करते हैं। इंटरनल ऑडिट शेड्यूल हम दे देते हैं उनको, ब्लैंक कॉपीज ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट देते हैं, AOS ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट, और प्रीवियस ऑडिट NC की रिपोर्ट भी देते हैं कि आप जो सेक्शन में जाने वाले हो, लाइक इफ यू आर कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन और क्वालिटी सेक्शन और dispatch section और purchase section, what were the previous audit NCs, वो भी आपको डिटेल देंगे ताकि आप वेरीफाई कर सको वहां पे जाके कि यहाँ पे जो करेक्टिव एक्शन और करेक्शन लिखा है वो एक्चुअली इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। एक तो पहली बार आपने किया होगा जब क्लोजर हुआ होगा, पिछले बार जो भी ऑडिटर होगा, अब आपको रीवेरीफाई करना है कि वेदर दैट करेक्टिव एक्शन इज इन प्लेस और नॉट, वेदर द सिस्टम इज improved or not, otherwise same problem again. Then auditors communicate with the auditee and carry out the audit as per schedule. ये देखिए फंक्शनल हेड को रिस्पॉन्सिबल कर दिया आपने कि जो भी कंसर्न पर्सन है वो टाइमली अवेलेबल रहे फॉर इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स, और जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रहे वो इजीली अवेलेबल रहे लोगों को, है ना। द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ प्रीवियस एनसीज वेरीफाइड हो जाएगा, है ना। और आपको फिर वहां पे ऑडिट ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने हैं, और जो नॉन कन्फॉर्मेंसेस है या कन्फॉर्मेंसेस है या OFI है वो आपको वहां पे मार्क करने हैं।
ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट जो है वो एमआर को सबमिट करेंगे। और अगर कोई एनसीज मिली है तो अगेन ऑडिटर को ही फिल करनी है। नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट कौन फिल करेगा? एनसी करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट जो है, नॉन कन्फॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट जो है, इट इज फिल्ड बाय द ऑडिटर। वो सेपरेट सीएआर शीट जो रहेगी, फॉर्मेट है, उसके अंदर आएगा। और फिर कार भरने के बाद वो एमआर को सबमिट करेंगे ताकि एमआर चेक करे उसको कि प्रॉपरली बना है या नहीं बना है। कभी कभी इंटरनल ऑडिटर कैन मेक मिस्टेक ऑल्सो व्हाइल राइटिंग द नॉन कन्फॉर्मेंस। तो एमआर की ड्यूटी है कि उसको चेक करे कि प्रॉपरली फिलअप है या नहीं है, क्योंकि एमआर इज having more exposure, it is supposed, है ना, MR is supposed to be having more exposure to auditing and all the documentation requirement. People looks up to him to guide them on the documentation, guide them on the internal auditing. अगर कोई dispute होता है तो उसके लिए भी उसके पास देखते हैं लोग। Why? Because he is supposed to be having more exposure about these activities. That's why. तो उनको देते हैं। अब उसके बाद every organization can have their own system, I am telling you, है ना। This is one I have prepared. फिर आप क्या करोगे? वो जो एनसी की रिपोर्ट है वो एक आप इनको दोगे एमआर को, और एक जो दोगे आप कॉपी दोगे इनके पास, ऑडिटर के पास। अगर क्लियर कर दिया एमआर ने तो एक ऑडिटर के पास रहेगी ओरिजिनल, और ऑडिटर को आप क्या देंगे, सॉरी, ऑडिटर को जो आप ओरिजिनल दोगे और उसकी कॉपी एमआर के पास रहेगी। वाई? बहुत बार ऐसा होता है, भले सॉफ्ट कॉपी रखो, नो प्रॉब्लम, है ना, नो नीड टू हैव मिनी मिनी पेपर। उसका आपने स्कैन करके रख लिया कि यस दिस इज द एनसीआर वी हैव सबमिटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑडिटी को देते हैं, ऑडिटी उसको मिस कर देते हैं या फिर बोलते हैं मुझे मिला ही नहीं, सो इट हैपन्स। तो आपने उसको देना है, कभी कभी एक्नॉलेजमेंट लेना है मेल के ऊपर, तो मेल के ऊपर एक्नॉलेजमेंट लीजिए कि यस एनसीआर मिले हैं मुझे, नंबर ऑफ एनसीआर कितने मिले हैं, एनसी शीट मिली है कि नहीं मिली है। फिर ऑडिटी उसके अंदर करेक्शन लिखेगा, करेक्टिव एक्शन लिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टारगेट डेट वगैरह लिखेगा, और फिर वापस ऑडिटर के पास देगा रिव्यू करने के लिए, ऑडिटर को देगा, है ना। और अगर ऑडिटर ने उस करेक्टिव एक्शंस को, डेट्स को एग्री किया है, तो जो फंक्शनल हेड है ऑडिटी है वो एक्शंस लेने के लिए प्रोसीड करते हैं। जहां पे कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एमआर। ठीक है। क्लोजर ऑफ एनसीज, उसके लिए भी किया हमने कि किस तरह से क्लोजर करना है एनसीज का। ऑडिटी क्या करेगा, जो भी करेक्टिव एक्शन है, डिस्पोजिशन एक्शन है, वहां पर लिखेंगे, वहां पे हो कि हम इस नॉन कन्फॉर्मेंस को, इट इज नॉट मटेरियल नॉन कन्फॉर्मेंस ओनली, सिस्टम नॉन कन्फॉर्मेंस है, इंप्लीमेंटेशन नॉन कन्फॉर्मेंस है, इसको किस तरह से हम करेक्ट करेंगे, है ना। अगर ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस इवेल्युएट नहीं हुआ, इट इज वन ऑफ द नॉन कन्फॉर्मेंस, तो आप इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? सबसे पहले तो जिस ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन नहीं हुआ है तो हम उसको इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ करेक्शन। बट करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये वापस किसी और केस में ना हो, तो वो क्या एक्शन लेने वाले वो आएगा, है ना। फिर जो भी एक्शंस लिए हैं वो आपको ऑडिटर को दिखाने पड़ेंगे, ऑडिटर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और अगर उसको सही लगता है तो एक्सेप्टेंस के साथ वो एविडेंस एमआर को सबमिट करेगा। जो भी आपने करेक्टिव एक्शन लिया है, कोई एसओपी बनाई होगी, कुछ ट्रेनिंग दिया होगा लोगों को, कुछ डिस्प्लेस किए होंगे, कुछ कंट्रोल प्लान्स बनाए होंगे, वॉट एवर द थिंग्स यू हैव मेड, सो दैट दिस थिंग्स शुड नॉट ऑकर अगेन। जो नॉन कन्फॉर्मेंस वापस ना होने के लिए आपने जो भी एक्शंस लिए हैं उसके कुछ एविडेंसेस रहेंगे एक्शंस टेकन के, तो वो वहां पे देंगे। एमआर फिर उसको चेक करेगा और उसको क्लोज करेगा। दिस इज द कंप्लीट लूप, है ना। और उसके बाद फिर एमआर ये सबको प्रॉपरली फाइल करके रखेगा। ठीक है। देन इंटरनल ऑडिटिंग की रिपोर्टिंग किस तरह से प्रिपेयर करनी है, किसमें करनी है, एमआरएम में डिस्कस करना है या नॉर्मल मीटिंग में डिस्कस करना है, वो सब वहां पे आया हुआ है। और फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर वेरियस फॉर्मेट्स हम देते हैं यहाँ पर। इंटरनल ऑडिट प्लान, उसका फॉर्मेट नंबर, इंटरनल ऑडिट शेड्यूल, इंटरनल ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट जो है नॉन कन्फॉर्मेंस करेक्टिव एक्शन, उसका फॉर्मेट, इंटरनल ऑडिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इसका रेफरेंस वहां पे रहे। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर रिवीजन हिस्ट्री एंड
डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट रहता है. इट इज वन ऑफ द से फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग अ क्वालिटी प्रोसीजर्स, है ना. क्वालिटी प्रोसीजर्स फॉर वेरियड लाइक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के लिए क्वालिटी प्रोसीजर रहती है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट के लिए रहती है, ट्रेनिंग के लिए रहती है, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, रिवेल्युएशन ऑफ द सप्लाई एक्सटर्नल प्रोवाइडर उसके लिए रहती है प्रोसीजर. तो उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे कैरी आउट करना. तो आप देखिए इस प्रोसीजर को देखने के बाद देयर विल बी नो एम्बिग्युइटी. आपको ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस इंटरनल ऑडिटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, कौन करने वाला है, कब करने वाला है, किस तरह से ये एक्टिविटी शुरू होगी, किस तरह से एक्टिविटी ये फिनिश होगी, पूरा लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल ऑल्सो. कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो दिया हुआ है वहां पर क्लियर कट. ठीक है. सो दिस इज अ क्वालिटी प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिटिंग. इसमें किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क. आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी बनी होगी, जस्ट गो थ्रू दैट वन, चेक कीजिए, वहां पे भी होगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से करना है, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, आपको पता चल जाएगी. ठीक. नाउ आई एम shifting to the presentation. So this was the procedure for quality internal auditing, and this is the audit reporting NCR format. ठीक है. ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट होगी आपकी, जो आप मेंशन किया था कि आपने डॉक्यूमेंट देखा, क्लॉज नंबर के हिसाब से चेक किया, ये ऑब्जर्वेशन था आपका पॉजिटिव. अब ये जो निगेटिव जो है OFI वगैरह, ठीक है, अब ये निगेटिव वाले हैं, ये सब जाएंगे कहां पर, NCR रिपोर्ट में, विच इज कॉल्ड नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट. ये निगेटिव वाली जो आपकी है ये सब आएंगी यहाँ पर NCRs. ठीक है. यहाँ पर आपका IQA नंबर, NCR नंबर, कौन ऑडिटी था, ऑडिटर कौन था, कब ऑडिट किया गया है, सेक्शन क्या था, है ना. यहाँ पे हमने प्रोसेस फ्लो भी डाल दिया है, बेस्ड ऑन दैट ओनली. ये आपको लिखना है, ऑडिटर को लिखना है, रेफरेंस क्लॉज यहां से आ जाएगा 8.4.1, नॉन कन्फॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एविडेंस क्या क्या था वो आ जाएगा. अब ये एक्शन जो लेना है वो कौन लेगा, दैट नीड्स टू बी टेकन बाय द करेक्शन. द एक्शन नीड्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटी और सेक्शन हेड. कौन लेने वाला है, कब तक खत्म करेगा, करेक्टिव एक्शन वो लिखोगे, क्या एक्शन ले. आई एम सेइंग कि किसको लेना है ना, ऑडिटर और सेक्शन हेड विल टेक द एक्शन. तो मेंशन करेंगे क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेने वाले हैं. यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू अराइव एट द कॉजेस. यू नीड टू यूज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वाई एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग. इससे आप रूट कॉज पे जा सकते हो कि यस क्या हुआ था, क्यों हुआ था ये प्रॉब्लम, है ना. आउट ऑफ कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज्ड इन द डिपार्टमेंट. करेक्शन क्या होगा, गेट दैट थिंग कैलिब्रेटेड. तो ये तो करेक्शन हो गया. बट ये वापस ना उसके लिए क्या करना है, तो आपको पहले तो रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ ही क्यों था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. कहाँ पे मिस्टेक है, सिस्टम में मिस्टेक है, या मॉनिटरिंग में मिस्टेक है, या पर्सन की कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रीजन. आप वो रीजन पे जाओगे तब कई करेक्टिव एक्शन लिखोगे ना. देन वेरिफिकेशन एक्शन, करेक्शन किसने रिव्यू किया, किसने वेरीफाई किया, करेक्टिव एक्शन किसने रिव्यू किया, वेरीफाई किया. फिर MR जो रहेगा आपका, MR ऑफिस है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस है, वो NC स्टेटस क्लोज या ओपन के ऊपर टिक करेगा, किसने क्लोज किया है, डेट कितने को क्लोज किया, MR का सिग्नेचर रहेगा. और यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि हमको ये क्लोज करना है 1 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट. जिस दिन ऑडिट हुआ, ऑडिट डेट से 1 महीने के अंदर ये क्लोज होने को होना. नाउ आफ्टर क्लोजर MR विल फाइल इट, फिनिश. इस तरह से ये NCR फॉर्मेट भी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही, है ना. तो ऑडिटर को पता होना चाहिए किस तरह से भरते हैं. ऑडिटर का काम है ऊपर की हेडर इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट नॉन कंप्लायंस का स्टेटमेंट, रेफरेंस क्लॉज एंड एविडेंस, ये चीजें उनको भर के देना है, और बाद में वेरीफाई करना है करेक्टिव एक्शंस. समटाइम ऑडिटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल,
MR does it on his own. But again, it depends on organization to organization. आपकी प्रोसीजर में क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कि किसको क्लोज करना है, कौन वेरीफाई करेगा. तो आपके कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर तो यू पीपल कैन आस्क. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज शेयरिंग द ऑडिट सिनेरियो नंबर 3 विथ यू पीपल. आप उसके ऊपर थोड़ा ये लगाइए, दिमाग लगा के आप सबमिट कीजिए मुझे कि क्या हो सकते हैं उसके क्लॉज, रिक्वायरमेंट, नॉन कन्फॉर्मेंस स्टेटमेंट और एविडेंस. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस ट्रेनिंग सेशन. तो कल का जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे अब तक क्या क्या हमने किया, क्विकली गो थ्रू दैट वन, एंड देन हाउ what assignments you need to complete so as to get the certificate from us. तो वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे. कुछ असाइनमेंट आपको हमारे वेबसाइट पे एक्सेस करना पड़ेगा, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा आपको, है ना. सो दैट टुमारो वी विल डिस्कस दैट थिंग्स. ओके, आज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू पीपल कैन आस्क, एल्स वी विल क्लोज द सेशन. No yes. question, sir. Okay. No question. Okay. So we are closing the session then. See you people tomorrow. Bye bye. Good night. Take care. Good night, sir. Good night. Yeah. Bye.